I've been assisting Tiger for 15 years now. Training will be an overestimation of what I did. But yeah, he was more or less an inspiration to me because he has always been in shape all throughout his life. He's one of the strongest stars we'll meet. Yeah. This guy can deadlift 200 kilos. This guy can squat 180 kilos. Wow. Yeah, he's a very strong person. And that reflects on camera. Where he looks strong, he looks like a person who can take a country down. That's because he actually has the ability to do that. With Tiger, there's not much of a change required. The guy is always in shape, Yeah. okay? Rajendra sir, the thing is, you began your training at the age of 21, Yes, and I think your inspiration was yourself in the mirror, absolutely. because Absolutely. you were a plum child, is what I'm told. Very, very You were a plum child? Very, very plum child. So, what triggered that a plum child who went on a journey from being that fat kid to training someone as big as Tiger, who literally lives with six-pack abs 24/7? So let me start with the plum child. Yes. To begin with, I was a plum child and now I'm a plum man. Nothing much has changed. And yeah, so when I was about 20 years old, I wanted to get in shape. And so I happened to join a gym. By the way, I'm a qualified IT professional and a fitness professional as well. And I happened to meet a late, great Kaizad sir. Kehzad Kapadia, the legend of fitness Yeah, in he is India. my guru. So I take him as my guru. Yeah. And so he introduced me to fitness industry, and that's how my journey began. And when I left my job as an IT professional, it was a big, big setback for my family. According to them, I come from a very orthodox Maharashtrian family. So for me to quit an IT job and get into fitness, for them it was like counting 1 to 20. Yeah. Like क्या कर रहा है तू 1 से 20 के अंदर? तो वो बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन था जिसको मुझे बहुत मुश्किल हुई फेस करने में, पर अल्टीमेटली मैंने किया किसी तरह। और 2022, 2014, 15, 12 में मुझे टाइगर श्रॉफ मिले और वहाँ से मेरी एक्चुअली सेलिब्रिटी क्लाइंट्स की ट्रेनिंग की जर्नी शुरू हुई। So where and how did you meet Tiger Shroff? ये कहाँ था ये? तो जैसे मैंने कहा, कौन से zoo में गए थे आप पकड़ने के लिए टाइगर को? तो जैसे कि मैं बता रहा था कि लेट ग्रेट कैजाद सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री में, और उनका ही जिम था 5 फिटनेस जू। वहाँ पे हमारे टाइगर श्रॉफ जी आते थे वर्कआउट करने के लिए, और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो टाइगर श्रॉफ जो है एक बहुत ही ताकतवर इंसान है, और उस समय मैं भी बहुत ताकतवर था, अभी भी हूँ पर तभी भी था। तो जब उसने देखा कि एक बंदा जो प्लम है और इतना वजन उठा रहा है, उससे वो आकर्षित हुए और उस तरह हमारी मुलाकात हुई, उस तरह हमारी बातें शुरू हुई। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ट्रेनर भी हूँ, तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू की, और उस बात को अभी हो गए 15 साल। What is your own fitness mantra? Is there a mantra that you live by for your own fitness? मेरी जितनी फिटनेस अभी दिख रही है आपको, उसके लिए बता पाऊंगा मैं आपको। Please, उसी के लिए। तो मैं Like how you said that I will eat food only when I feel hungry. वो दिन में 3 बार 2 बार खाने का मेरा हिसाब है ही नहीं मेरा। नहीं, वो हिस्सा मेरी जिंदगी का हो चुका है। मतलब मैं जब इनिशियली फिटनेस में आया तब मैं दिन में 6 बार ही खाता था। हाँ। फिर जब जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी तो 4 बार ही हो गया। जब पैसा कमाने की बारी आई तो 3 बार ही हो गया। अभी जब मैं एक भगवान की दया से एक लेवल पे पहुंचा हूँ जहाँ मुझे 2 जिम्स रन करने पड़ते हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी लोगों की जीवनी निर्भर करती है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना हो सके अपना समय इस ब्रांड को ग्रो करने में लगाना है, और जितना हो सके मेरा दिमाग, मेरे शरीर उसी तरफ जाए। तो अगर मैं दिन में 4-5 बार खाने जाऊँ तो मैं खाता ही रहूँगा पूरा दिन। तो करंटली मैं दिन में 2 या 3 बार खाता हूँ मैक्सिमम, और सुबह 6 बजे उठ के मेरा दिन शुरू होता है। पहले आधा पौना घंटा मैं भागता हूँ या फिर कार्डियो करता हूँ, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करता हूँ। हाँ, और मैं वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों खाली पेट ही करता हूँ। वाह। भूखे पेट करता हूँ, मैं बिल्कुल कुछ खा के नहीं करता, और उसके बाद ही अपना खाना शुरू करता हूँ। तो ये मेरा करंट फिटनेस मंत्र है। हाँ। जो मैं रेकमेंड करूंगा जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए, कि अपना जो सुबह के 2 घंटे वो फिटनेस के लिए पूरी तरह से दे दो। दिन भर आप काम कीजिए, और आइडियली 2 बार खाना बहुत हो गया, 3 बार खाना बहुत हो गया, तो उसके ऊपर खाना आई फील इज जस्ट स्पॉइलिंग योरसेल्फ। तो टाइगर नॉर्मली सुबह उठ के उनका जो दिन शुरू होता है वो होता है कार्डियो से शुरू। He loves this machine, so he does this cardio every morning for about 45 minutes. 45 मिनट वो स्टेप चढ़ता है? हाँ, वो अलग है। वो मतलब that guy is driven to another level. He's something else. अगर ये नहीं करता होता तो आप उसे भागते हुए पालेंगे यहाँ पे ट्रेडमिल पे। हाँ। नॉर्मली वो 8 या 9 की स्पीड भागता है, आधा पौना घंटा 8-9 की स्पीड आधा घंटा भागता है? भागता है कंटिन्यूस। वो आदमी कौन है?
Genuine question. I really, I'm like, listen to the देखो नाम to the name Tiger. नाम से तो टाइगर है वो, पर है इंसान। तो ये उनका एक फेवरेट है। उसके बाद अगर आप टाइगर को अच्छी तरह जानते हैं तो टाइगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ही लव्स स्क्वाटिंग। I think I've seen one of your videos wherein I saw him squatting 120 kilos. No, वो 180 तीन प्लेट थी ब्लू कलर की, नहीं, वो बड़ी 4 बड़ी प्लेट्स थी। तो 4 थी। हाँ, तो 20 किलो की एक प्लेट होती है, 20 एक तरफ, 20 उस तरफ, तो टोटल वो होता है 180 किलो। 180 किलो के हिसाब हमारे 3-4 रेप मार लेते अप एंड So डाउन। that is his 3 times the weight. दैट इज 3 times the weight, twice the weight। Twice the weight. Twice the weight. Yeah. तो दिस इज वन ऑफ और हिज बैक स्क्वाट पे 180 किलो मारना मतलब भयानक है वो। अच्छी तरह मार लेता है वो। मतलब मेरे ख्याल से किसी एक्टर के लिए वो करना बहुत बड़ी बात है। True. बिकॉज बहुत सारे एक्टर जो है इस तरह के रिंग से दूर भागते हैं ताकि उनको इंजरी ना हो, पर हाँ। ये बंदा अलग है। ये मतलब 15 साल से वो कर रहा है, तो उसे भी डर नहीं है किसी चीज़ का, कर देता है वो। और इसीलिए शायद से ये निडर जो उसका नेचर है वो उसके स्टंट्स में आपको दिखाई देगा। True. कहीं ना कहीं ये कोरिलेशन होता है कि आप डरना भूल जाते हो। तो True. ये उनका एक फेवरेट वर्कआउट है। मतलब ही लुक्स फॉरवर्ड टू डूइंग लेग्स। If you love legs, that means you are Yeah. you've reached that level of fitness के हाँ भाई You आज understand that all his action, gymnastics, kicks, dance, it starts from his legs. So True. if you don't have a strong pair of legs, True. you won't be able to perform those things that he does. You know, apart from flexibility and everything else, you need certain level of strength to achieve that. True. Which I think somehow he has managed to get it with the help of squats and other kind of training. Oh, lovely. Okay. So जब भी कभी मेरे जिम में आता है तो हम लोग पूल खेलते हैं। He's good at outdoor sports. He's good at indoor sports. So I don't know why God has been so good to me. Since he's too much into running and soccer and sports. हाँ हाँ। फुटबॉल भी खेल लेते हैं यार वो। बास्केटबॉल हो गया, इन सब के लिए आपका जो हैमस्ट्रिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग और जरूरी रहता है। तो one of the exercises which he does, he doesn't like it much, but he does it because he knows it prevents a lot of injuries that might happen while playing soccer or basketball. Hamstring is one of those muscles which are Wow. you need to have very strong hamstrings to perform those activities without any injuries. Lovely. So he does that irrespective of whether he likes it or not. It's like a, you can say, bitter medicine. Yeah. Now pull the yellow lever towards you. Harder. Now you unlocked it, okay? Now go down. Yes. That's what it is. Wow. Shit. Now to lock it, you have to push it down. Squat. Lock. Ooh. So ये उनकी एक बहुत This is yeah. painful. ये भी पेनफुल है और काफी हद तक इफेक्टिव भी है। हाँ. मैं ये नहीं कहूँगी पेनफुल चीज इफेक्टिव होती है, बट ये है और चेंज ये है। और एक और जो टाइगर का फेवरेट मसल ग्रुप है, मतलब सबसे ऊपर उसको जो पसंद है वो है बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक के सारे हैंडल जो मैंने लगाए हैं। ये हो गया, ये रोइंग की मशीन है, ये उनकी बहुत फेवरेट है। Oh, you do this. You Rowing pull on it this one, way. हाँ, तो उन साहब के लिए मैंने मल्टीपल हैंडल्स जो मंगाए थे वो टाइगर जेई के लिए मंगाए थे। ये सारे हैंडल्स जो है ये उनके लिए बड़े मतलब उनकी पसंदीदा चीज है ये। So this is you pull it on the chest on the back. Yeah, put it on the chest. Yeah. Ooh. भाई साहब तो बहुत heavy मारता होगा इसके अंदर भी टाइगर। बहुत हैवी मारता है वो। तो आपने कुछ देर में मुझे सवाल पूछा था कि टाइगर के लाइफ में मैंने ऐसा क्या ऐड किया है True. हाँ. कि जिससे उनकी बॉडी में कुछ चेंज आया हो। मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी बात मैंने ऐड की। ये सारे हैंडल्स जो मोस्टली इंडिया में नहीं मिलते वो मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाए थे। तो आई थिंक उसके वजह से अगर कुछ चेंजेस आए रहेंगे तो वो शायद उनके लाइफ में हो रहेगा। True. उसके अलावा कुछ खास मैं नहीं कर पाया बिकॉज ही इज वेरी वेरी डेडिकेटेड। ऑल द क्रेडिट फॉर हिज फिजिक गोज टू हिम। फिर ये एक मशीन है जो उनकी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। ये बेसिकली एक लैट पुल डाउन ही है एक तरीके से, बट ये क्रिस क्रॉस जाता है, मतलब इट गोज लाइक दिस। सो ट्राई इट आउट, you'll get आइडिया ऑफ इट। This one. पुल इट, या पुल, ये हाँ Ooh. या। So you specially imported this machine. यस, So this is for shoulder or this is for back? बैक पुल इट ऑल द वे डाउन, रियलाइज इट। पूरा खींचो ये या ये
गॉड, कैसे कर ले टाइगर, कैसे कर लेता है? टाइगर इसके ऊपर और प्लेट्स डाल के करता है, 2-2 प्लेट डालता है और करता है। मैं तो इस रबर से है स्ट्रांग है लड़का। फिर लड़का हीरा है, हमारा हीरा है। हीरा तो नहीं पता बट टाइगर जरूर है वो। Love this machine. This is called a standing chest press machine. You should try it out. Go inside. So if you see a lot of bench presses are where you sit down. हाँ, आपको बेंच पे लेटना पड़ता है, फिर ये एकमात्र ऐसी मशीन जहाँ पे खड़े खड़े पुश कर सकते हो। इधर पकड़िए, हाँ, अब पुश इट, हाँ, ये पुश, हाँ। इंटरेस्टिंग। तो इन सब मशीनों पर कुछ उसके बॉडी में बदलाव आया रहेगा तो शायद उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पर उसके अलावा जहाँ तक डिसिप्लिन की बात आती है, कंसिस्टेंसी की बात आती है, वो टाइगर सर खुद ही करते हैं। So how do you add weight here? There is something. You add the loading, those are loading bars. You place weights there. Wow. Plates normally. This is called seated overhead press. Yes. Dumbbell. Tiger does this or performs this exercise with 50 kilo dumbbell in each hand. That is his strength. That's like my half body weight in one hand. You can almost say that. Yes. Probably more than. More than है, मतलब नहीं, मतलब मैं Yeah. खुद ही 75 किलो का हूँ, मतलब हाँ, तो उससे ज़्यादा ही है। हाँ, more than like literally. हाँ. More than half in me of me in one hand, one and a half me in one hand. 100%. That's him. एक और बात बताऊंगा आपको, आप जी. फिलहाल ये रख दीजिए प्लीज। हाँ जी। Rack your weights after. Yes, after use, please. It's a very humble request to everybody who goes to gym. Please, rack it. Try and lift it once if you could possibly. Move it also. I'll be just keep your back arch. Okay, while lifting. This is 65 kilo. This is 10 kilos less than my body weight. Okay. So this is what Tiger does for chest press. मतलब it's like a one of me in each hand. Yeah, yeah. So the reason why I, being his trainer, I'm a fan of his is because he's very strong and at the same time he's very lean also. True. Normally it's not the case. If you're either a lean or muscular. Yeah. No, either you're lean or you're strong and fat. हाँ. So this guy is somebody who is strong and lean, which is I think it's a very very lean, very very rare quality or a rare personality you'll meet who are lean and strong both. Wow. And the credit goes to Tiger Shroff himself because he has been consistently training for the last 15-16 years.